No, any response? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ओके, ठीक आहे. मग कोणी केलंय? हॅज एनीवन डन? तुमच्याकडे तो डेटा सेट होता त्याच्यावरती तुम्हाला इनसाइट्स वगैरे फाइंड आउट करायचे होते. देन आय आस्क्ड वन मोर होमवर्क. व्हॉट इज दॅट? ऍटलीस्ट होमवर्क तरी सांगा काय आहे. होमवर्क नाही केलं दॅट इज डिफरंट. देयर इज वन मोर व्हेरी इम्पॉर्टंट होमवर्क आय आस्क्ड यू टू डू इट, which is not there in our class file. कोण सांगेल? गव्हर्नमेंट वरून डेटा घ्यायचा. येस, गव्हर्नमेंटच्या वेबसाईट वरून तुम्हाला डेटा घ्यायचा होता आणि त्याच्यावरती सगळे प्रोसेसेस करायचे होते. डेटा क्लिनिंग, डेटा अंडरस्टँडिंग, डेटा फॉर्मॅटिंग, राईट? तर कोणी कोणी केले? येस, हॅज एनीवन डन? Has anyone completed the homework? Okay, good. So if you have not done homework, please do it. जर तुम्ही होमवर्क वगैरे केला नसेल तर करून घ्या. होमवर्क केलाय का? डेटा जीओव्ही प्लस इन घरात मॅडम फाईलचं होमवर्क वगैरे केलं? क्लास वर्क, होमवर्क? Okay, if you have not done, you can complete it. Okay. So quickly summarize what we learned. We started in previous lecture. We learned what is the role of data analyst. Right? He has to find out insights. He has to provide actions, and to achieve करण्यासाठी he needs to perform certain steps such as data understanding, formatting, consolidation, cleaning, summarization, right? And my insights, all those things as a data analyst. And then we started with some example from some samples, some superstore related data, right? uh, Superstore related data होता, some transactions होते. Let's call it a transactions from a stores, a shop, and it has a transactions, right? फॅन बंद करता का जरा? तर त्याच्या ट्रान्झॅक्शनचा डेटा आपण बघितलाय आणि त्याच्यावरून तुम्ही इन्साइट्स काढलेत. सो इन्साइट्स, बेसिक इन्साइट्स म्हणजे प्रायमरी इन्साइट्स किंवा बेसिक इन्साइट्स म्हणू शकतो, सच एज मॅक्सिमम, मिनिमम, एव्हरेज, राईट? हे सगळे बेसिक झाले जे की तुम्ही बाय युझिंग फॉर्म्युला ऑल्सो काढू शकता, अँड देन यू कॅन सिलेक्ट ओनली अँड देन फाइंड आउट द सोल्युशन. येस, नो, क्लिअर? हे आपण सगळं बघितलं होतं लास्ट लेक्चर मध्ये. येस सर. ओके, गुड. डेटा फॉर्मॅटिंग मध्ये खूप डिटेल मध्ये आपण गेलो होतो विथ द नंबर्स अँड एव्हरीथिंग, राईट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द इनसाइट्स. जे इनसाइट्स तुम्हाला ऍज अ होमवर्क काढायला सांगितलं होतं. आय आस्क्ड यू टू टेक मोर दॅन 1000-2000 नंबर ऑफ रोज असलेला डेटा, त्याच्यावरून मिनिमम, मॅक्सिमम हे काढायला सांगितलं होतं. data.gov.in नावाच्या गव्हर्नमेंट वेबसाईट वरून कोणताही डेटा तुम्हाला घ्यायला सांगितलं होतं, and then we asked you to do a insights. So next one, what we can do is, if you would have done, जर 1000 रेकॉर्ड असतील तर 1000 रेकॉर्ड मधून मिनिमम मॅक्सिमम काढायला खूप अवघड आहे, राईट? You might have faced a difficulty. So what we have is, or how we can optimize, or how we can reduce this process. म्हणजे जे इनसाइट्स काढायचे आहेत त्याला क्विक इनसाइट्स म्हणतात. क्विक इनसाइट्स आर नथिंग बट मिनिमम, मॅक्सिमम, हु इज द हायेस्ट, हु इज द लोएस्ट, what is the, how he is performing, what is the job in this month, in this week, in this day. हे जे क्विकली तुम्ही डेटा बघून सांगू शकता, or you don't need any complex calculation. That insights is nothing but a quick insights. And a quick insights, to find out such quick insights, you have some tools, some options are available in the Excel. So what are these options that we'll see? We'll use the same method. We'll use the same data, not an issue. Okay. So there are two options available at our disposal. So first of all, you need to click on the home tab. Home tab दिसतंय इथे. In the home tab, there are two options,
such as conditional formatting and Hello, sir. oh yes, Sorry to screen is interrupt. not visible. Yes. So, hope my screen is visible now. Okay. And थोड़ा lecture सुरू व्हायला delay झाला but clear दिसतंय screen सगळ्यांना online. Yes. Okay, good. So what we can do is which data should sheet 2 ही कर दें क्या? Okay, everything is formatted. Okay. So let us see. Here we can use something like this. Okay, आता इथं तुम्हाला maximum आणि minimum काढायचं. Okay. कोणता data? ठीक आहे, we can use this also, not an issue. Okay, हा दिसतोय आता डेटा सेमच डेटा I have not changed anything. Okay. तर तुमचं डेटा अंडरस्टँडिंग इज क्लिअर, डेटा फॉर्मॅटिंग इज क्लिअर. डेटा फॉर्मॅट वगैरे झालाय. कसं तुम्ही सेल्सला बघू शकता डॉलर मध्ये आहे, राईट. अँड देन प्रॉफिट जे काय आहे पर्सेंटेज मध्ये, सॉरी करन्सी मध्ये, डिस्काउंट इज इन पर्सेंटेज, राईट. एव्हरीथिंग इज सॉर्टेड प्रॉपरली आणि प्रत्येक कॉलम मध्ये तो डेटा आहे. डेट मध्ये डेट्स आहेत, कंट्री मध्ये कंट्री. ओके. Suppose you have completed. Now you are at the stage of data understanding, data formatting, data consolidation पण झालं. आता तुम्ही you are at the stage of finding a quick insights. The quick insight काढायचे असतील तर there are two options: conditional formatting and filter and sort. The first method we will see. First method, you need to click on home tab, go to conditional formatting. इथे दिसतंय वर conditional formatting at the top. You click on conditional formatting. Then multiple options open होतात. We'll go one by one. We'll see first highlight cell rules. So there are certain highlighting conditions. So what I can do is, let me दिसतोय का तुम्हाला आता ऑफलाईन इथे? ओके. ऑनलाईन मग लॅग वगैरे होत नाही ना, की आय फील देयर इज अ लॅग. तुम्हाला होतंय ऑनलाईन, वाटतंय का तुम्हाला लॅग? नाही sir. Okay, good. So what we can do is to find out, suppose the condition we have is we need to find a maximum sales. Okay. तर मी काय करणार, I will select this, select the column completely. How? First select the first sales चं जे पहिलं column आहे, सॉरी रो आहे or cell आहे ते सिलेक्ट करा. Shift Control down arrow. जेवढा डेटा आहे सगळं सिलेक्ट होईल. मे बी 1000 रेकॉर्ड, 10,000, 20,000 सगळे रेकॉर्ड सिलेक्ट होतील तुमचे, राईट. देन गो टू कंडिशनल फॉर्मॅटिंग, होम टॅब, कंडिशनल फॉर्मॅटिंग, हायलाइट सेल रूल्स क्लिक करा. इथे मग कंडिशन तुम्ही देऊ शकता, ग्रेटर दॅन, लेस दॅन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट, डेटा. लेट अस सी ग्रेटर दॅन. फर्स्ट ऑप्शन क्लिक. इट सेज ग्रेटर दॅन सेल दॅट इज ग्रेटर दॅन किती पेक्षा जास्त पाहिजे. यू कॅन एंटर व्हॅल्यू. मला आता हायलाइट करायचे आहेत विच आर ग्रेटर दॅन 2000. ओके. 2200 हे तुमचं काहीतरी ब्रेक इव्हन होतं इथं प्रॉफिटचं वगैरे. मग इथं हायलाइट, आणि हायलाइट शुड बी कलर सिलेक्ट करायचे. रेड, ग्रीन, ब्लू हे दिसतात कलर. ग्रीन. Okay, just a second. Why it is not working? Because I have not format them in the currency. Okay. Just a second. Number.
ये होगा and then okay, now it is there. Okay, इथे तुम्ही मेन्शन करू शकता. सपोज नाव यू नीड 2000, तर 2000च्या वरच्या हायलाइट झालेले आहेत. मे बी वी कॅन मेक इट अ ग्रीन, समथिंग लाईक ग्रीन. ओके, डार्क ग्रीन. इथे तुम्ही हायलाइट करू शकता. ओके, क्लिअर. सो लाईकवाईज यू कॅन यूज. आता इथून ग्रेटर दॅन 3000 वगैरे लावलं. सो व्हॉट आय कॅन डू इज, असं नाही की दरवेळी तुम्ही जाऊन ते चेंज करू शकता. यू डोंट हॅव टू. What you can do is click on conditional formatting, go to here manage rules. Manage rules नावाचा ऑप्शन दिसतोय का इथे? हे बघा. Okay. There is option called manage rules. So what जे काही तुम्ही आता बनवलंय rules, that it will use. इथे हे बघा. It says cell value greater than 2000 असेल तर फॉर्मॅट काय करा, ग्रीन. कुठं अप्लाय करा, I2 to I20, राईट. आणि स्टॉप, जर स्टॉप करायचं असेल तर इथे करू शकता. मग एडिट करायचं असेल व्हॅल्यूला तर एडिट ऑप्शन इज अवेलेबल हिअर, राईट. यू कॅन सिलेक्ट Hello, एडिट. sir. येस. Sorry, actually, your screen was lagged after you highlighted as green. Maybe it is for me or any other also. Not sure. Can you please repeat again? Okay. Okay, so what we did is we selected the cell, we Yes, sir. selected Yeah. the data, then we went to conditional formatting. Okay, and then we got greater than, click. Yes. Then we created a formula. Yeah. Formula as in you need to mention the, suppose greater than 2000, greater than 3000, whichever cell you want to highlight, you can mention the value, and as per that the condition will get highlighted. Okay, profit पे करते हैं, चलो, not an issue. Profit में बताइए, I need to find out if my profit indicate my profit is greater than 500. ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है जहाँ पे प्रॉफिट 500 से ज्यादा है. What I should do is shift control down arrow. I need to select the data, go to conditional formatting, highlight cell rule, greater than. अभी बोलिए ग्रेटर देन कितना चाहिए आपको? 500. ओके, 500 एंड दिस शुड बी ग्रीन. ग्रीन क्यों? क्योंकि गुड है ना. ग्रीन सिग्निफाइज इट इज अ बेटर और समथिंग इज ग्रोइंग. रेड सिग्निफाइज समथिंग नीड्स अटेंशन और इट इज अ लॉस. So always use red and green. Press OK. So now you can see कि इतने सारे प्रोडक्ट है जिनका 500 से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है. ओके, सिमिलरली एक रूल भी लगाया है. सो नॉट ओनली नाउ आपने इतने अलग अलग रूल्स लगाए, इफ यू नीड टू अप्लाई सम अदर रूल्स you get confused. So what generally people do is once you apply the conditional formatting, if you want to clear the rules, यहाँ पे ऑप्शन है कॉल्ड क्लियर रूल्स, दिख रहा है क्या? So if I apply and I don't want to use this rule anymore because ये फाइल में सेव रहता है हमेशा के लिए, तो इसीलिए आपको जब चाहिए वो अप्लाई कीजिए, उसके बाद क्लियर कीजिए, और एल्स वो अप्लाई होते ही रहेगा. So you Sir, can I have a doubt. yes. So you can do this as many times as you want, right? Yes. Okay. But what happens, no, many times rules, you get confused between rules. मतलब कौन सा रूल अप्लाई किया था तो कौन सा कलर आया है, कौन सा रूल अप्लाई नहीं किया तो कौन सा कलर आ रहा है, और देयर इज अ लॉजिकल मिसमैच. मतलब एक रूल लगाया आपने ग्रेटर देन के लिए, दूसरा लगाया कुछ इक्वल टू के लिए, तीसरा लगाया कुछ सम रैंडम कंडीशन के लिए. तो ये many times वो if it gets like एक ही रोल पे मल्टीपल रूल्स अप्लाई हो गए ना, so it takes the latest one. तो इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं. सो इसीलिए यू अप्लाई वन रूल वन एट अ टाइम. एक बार आपको पता चला क्या आउटपुट है, क्या चाहिए, दिस इज व्हाट इट इज, देन यू अप्लाई ऑल द रूल्स एट वंस. दिस इज व्हाट आई फॉलो द प्रैक्टिस. इट डिपेंड्स आपको हाउ, इफ यू आर कंफर्टेबल अप्लाइंग ऑल द रूल्स एट अ टाइम, आप अप्लाई कर सकते हो, बट दिस इज व्हाट आई फॉलो.
क्योंकि आई हैव यूज्ड मल्टीपल रूल्स इन वन शीट एंड आई गॉट कंफ्यूज्ड, तो बाद में पता नहीं चल पा रहा कि कौन से रूल के लिए क्या कंडीशन था, क्यों अप्लाई किया था, उसका रीजन क्या था. सो डिपेंड्स, इट्स जस्ट बाय एक्सपीरियंस है. आपको इफ यू आर कंफर्टेबल अप्लाइंग यू कैन. सो Okay, sir. ओके गुड. तो अंडरस्टूड. हमने अभी थोड़ा ग्रेटर देन देखा, इससे रिलेटेड है, लेस देन भी है. चेक लेस देन, सिलेक्ट द डेटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट लेस देन, राइट. लेस देन कितने से कम चाहिए? आई वांट somebody who is greater than less than 50. ये तो बहुत हाँ लो है. सो यू कैन हाईलाइट विद द रेड. नॉट ओनली रेड, आप कस्टमाइज भी कर सकते हो यहाँ पे. ये देखिए कस्टम फॉर्मेट, राइट. कस्टम फॉर्मेट है यहाँ पे ऑप्शन. सो सिलेक्ट दैट. आपको कैसा चाहिए वैसे आप फिल कर सकते हो. ऊपर और बहुत सारे ऑप्शंस है. फॉन्ट कैसा रखना है, बॉर्डर देना है क्या, फिल देना है क्या, राइट. ये अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. फिल, ये देखिए कलर यहाँ से ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो. मोर कलर चाहिए तो मोर कलर में और ज्यादा कलर है, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन चाहिए आपको वो कलर कॉम्बिनेशन में आप सेट कर सकते हो. ओके. प्रेस ओके. 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 देखिए the numbers which are less than 50 are indicated with this color. Okay. So mostly customization related बहुत सारे options आपको अवेलेबल है. as and when required आप यूज कर सकते हो. नॉट ओनली दिस, बहुत सारे अलग कंडीशंस है, लॉजिकल कंडीशंस. इन बिटवीन, ये देखिए इन बिटवीन क्या करेगा, आपको दो नंबर देना है. बिटवीन 300 to 5000 और बिटवीन 300 to 600, that it can highlight. Then next is equal to, conditional formatting, highlight equal to. It means exactly matching the condition. इसके साथ एग्जैक्ट मैच होना चाहिए. 1000 रुपीज के साथ मैच होना चाहिए. इफ यू प्रेस 1000 इट विल मैच. ओके. देन देयर आर few more options. मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम क्या करते हैं, सो टेक्स्ट है, डेट ऑकरिंग है, डुप्लीकेट वैल्यूज. सो सबसे ज्यादा मोस्टली हम डुप्लीकेट वैल्यूज हम देखते हैं. एज इन इफ यू यूनिक एंड नॉट नल वगैरह जो कंडीशंस रहते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज पे वो फाइंड आउट करते हैं. इफ यू नो मे बी किस पे, मोस्टली सारे इसमें डुप्लीकेट है. मे बी क्वांटिटी आई कैन ट्राई. लेट अस सी. कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज. ओके. किससे हाईलाइट करना है? रेड से. तो आप देख सकते हो ये सारे डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन अरेंज और यू कैन फाइंड आउट. अभी बहुत ज्यादा डेटा हो तो भी वो वर्क होगा, नॉट एन इशू. सिर्फ कलरिंग का ही है ना. क्लियर ऑनलाइन कैसे क्विक इनसाइट्स. तो इससे आपको पता चलता है कि टॉप 5 कौन है. टॉप 5 सेल्स किसमें हुआ है, आप डायरेक्टली हाईलाइट कीजिए. सेल्स में सिलेक्ट कीजिए सर्टेन नंबर. टॉप 5 को आपको थोड़ा और लिखना पड़ेगा. देयर इज, इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे सेकंड कंडीशन आप ऑब्जर्व करोगे, ऑलरेडी रूल्स बना के दिया है. दिस इज अपडेटेड वन. पुराने इसमें नहीं था, बट ठीक अभी दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. सो आपको इवन काउंट भी नहीं करना है, मतलब कौन से नंबर के आगे 5 है, कौन से नंबर के आगे 10 है. सो व्हाट वी डू इज, लेट्स यूज शिपिंग कॉस्ट. शिपिंग कॉस्ट को मैं डेटा सिलेक्ट कर देता हूँ. देन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, गो टू टॉप एंड बॉटम, टॉप 10 आइटम्स, टॉप बॉटम 10 आइटम्स, टॉप 10 परसेंटेज वाइज आइटम्स. मतलब हर एक का परसेंटेज निकालेगा, उसमें से टॉप 10 सिलेक्ट करेगा वो. वैल्यूज का टोटल, उसमें से टॉप 10, राइट. अभी टॉप 10 आइटम्स आप सिलेक्ट कर सकते हो. ओके. इसमें से बाय वैल्यू टॉप 10 उसने हाईलाइट किया. मे बी इट गोज विद द ग्रीन कलर, राइट. नीचे प्रेस ओके. डायरेक्टली आपको पता चला कि टॉप 10 कौन है यहाँ से. तो डेटा कितना भी रहे वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करता है. टॉप 10 परसेंटेज वाइज इज, परसेंटेज मतलब मान लीजिए किसी ने गेट, कैट वगैरह एग्जाम दिया है क्या, और सीजीपीए किसी का था, सीजीपीए टाइप इवैल्यूएशन. तो सीजीपीए में क्या होता है, 100 मार्क्स का पेपर, उसमें से जो हाईएस्ट आएगा उसको 10 मार्क रहते हैं.
और 100 आउट ऑफ 100। मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का पेपर है और किसी को 75 मार्क्स मिले हैं, हाईएस्ट मार्क है, तो जिसको 75 मिला है उसको 100 परसेंटाइल रहता है, तो वहां से कैलकुलेशन पीछे शुरू होता है। तो यहाँ पे फेल एंड पास ऐसा कुछ नहीं रहता, जो बॉटम 25 है वो फेल बाय डिफॉल्ट, उसमें ऐसा नहीं कि 35 के आगे ही पास रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल जितने स्टूडेंट थे उसमें से बॉटम 25 आर फेल, तो फिर कितने भी मार्क्स मिले उनको। ऐसे ही सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कैलकुलेशन रहता है, उसको परसेंटाइल बेसिस बोलते हैं। परसेंटाइल, ये परसेंटेज अलग, परसेंटाइल अलग। ओके, क्लियर सबको कैसे इनसाइट्स निकालना है? क्विक इनसाइट्स, so quick insights you can use to find out top 5, top 10, bottom 5। ये देखिए यहाँ पे बॉटम रिलेटेड भी है कैलकुलेशन, बॉटम 10, बॉटम आइटम्स, बिलो एवरेज, और बिलो एवरेज अबव एवरेज डायरेक्टली आपको एवरेज के आगे जितना भी वैल्यू है उसमें से एवरेज से आगे कितने लोग हैं वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये डेटा मोस्टली कंपनी में अप्लाई होता है, मतलब आपके कंपनी में whatever the number of people are there, सारे एम्प्लॉइज को एवरेज से ज्यादा कौन से एम्प्लॉय को पैसा मिल रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो। क्लियर? मे बी इफ आई हैव अ डेटा सेट, है क्या अपने पास? ओके, एचआर रिलेटेड एक डेटा सेट है, उसमें से हाँ दिस इज द डेटा सेट। यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हो सैलरी का कॉलम कहाँ पे है, हाँ ये सीटीसी, इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, and then you can apply conditional formatting top and bottom above average। ओके, और ये above average रेड कलर के ही होने चाहिए। देखिए इतने above average कैंडिडेट्स है, बिलो एवरेज सिर्फ 5 लोग हैं। ओके, लाइक दिस, मतलब सब हाई पेइंग एम्प्लॉइज है इनके कंपनी में, सबको एवरेज से ज्यादा सैलरी मिल रही है। सो लाइकवाइज यू कैन प्रोवाइड इनसाइट, हाई, अबो एवरेज, बिलो एवरेज, हाई पेइंग, लो पेइंग, कौन कौन से एम्प्लॉइज है, कौन से डिपार्टमेंट के हैं। ओके, so there is one more method, there is second option which we have। second option मतलब जो second हमने बोला था कि filter and sort, जो first condition है quick insight find out करने के लिए which is conditional formatting। By the way बहुत सारे options है, data bars, colors and icons वगैरह है, but we hardly use these options। okay, quickly I will show you उसका कैसे use करते हैं, and then maybe we can look for the filter। यहाँ पे डिस्काउंट पे देखिए, सिलेक्ट, सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार। डेटा बार क्या करता है, बार चार्ट ड्रॉ करता है उस सेल के अंदर। ये बहुत मतलब नोबडी यूजेस दिस, क्योंकि ये इसके अंदर आप पढ़ नहीं सकते। देखिए 20, राइट, ये छोटा हुआ तो, ये यहाँ छोटा हुआ तो फिर भी आप पढ़ नहीं सकते। बहुत व्हाट इट सेज इज रीडेबिलिटी कम होता है इससे, डेटा का रीडेबिलिटी, इसीलिए मोस्टली पीपल डोंट यूज सच बार्स, डेटा बार्स यूज नहीं करते। ओके, क्लियर? पर आपको ऐसा कहीं रिक्वायरमेंट है जहां डेटा बार्स ड्रॉ करना है, देखिए ऐसे, सो यू नीड टू बिट केयरफुल कि आपका डेटा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसके बेसिस पे वो कंडीशंस डिफाइन होते हैं। नॉट ओनली दिस, कलर स्केल भी है, कलर स्पेसिफिक। बाय द वे इसमें और ज्यादा कलर भी है, अलग अलग कलर भी दिखा सकते हो based on your requirement। let me clear all the rules, थोड़ा बहुत क्लटर हुआ है entire sheet। ओके, क्लियर? अभी डिस्काउंट के लिए हम देख सकते हैं कि यू कैन सिलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर स्केल, अलग अलग स्केल के ऊपर कलर आएगा वो। इट विल फाइंड आउट मीडियम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है। ये देखिए इट सेज कि 20% आर मैक्सिमम, तो इसलिए उसने रेड कलर का दिखाया। 10 आर मीडियम तो ऑरेंज और नहीं तो येलो, एंड 0 आर लोवेस्ट तो ग्रीन कलर। सो डिपेंड्स, अभी सेल्स में भी वो अच्छा दिखाएगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे सेल्स के भी अलग अलग आप बार्स दिखा सकते हो। देखिए डिपेंड्स आपको कैसे हाईलाइट करना है।
मतलब व्हाट यू वांट टू सी एग्जैक्टली, रेंज कैसा है। अभी मुझे पता चल रहा है कि ऑरेंज के और येलो कलर बहुत ज्यादा है मेरे सेल्स केस में, तो सारा डेटा मेरे एवरेज के आसपास है, क्योंकि एवरेज इज नथिंग बट येलो कलर, राइट। तो उसके आसपास मेरा बहुत ज्यादा डेटा है। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों और डेटा कैसे है और इधर बायस्ड है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम ये अलग अलग कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। क्लियर सबको? तो इसका ही यूज करके आप लार्ज डेटा सेट पे क्विक इनसाइट्स फाइंड आउट कर सकते हो। अभी मान लीजिए आपके पास 10,000 रिकॉर्ड है, तो आर यू कंफर्टेबल टू फाइंड टॉप 10 टॉप 20 रिकॉर्ड्स? ओके, इसीलिए मैंने आपको data.gov.in जो वेबसाइट है वहां पे वो बड़े बड़े डेटा सेट्स मिलते हैं, बहुत बड़े। तो आपको इसीलिए उसका डेटा सेट लेके होमवर्क करने के लिए बोला था, so that you can use all these methods. You can get anywhere डेटा सेट कहीं से भी ले लो, बट ओनली मेक श्योर कि रिकॉर्ड ज्यादा है उसमें, ऐसे। इंटेंशन वाज दैट, बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद कैगल, गूगल करके भी आप डेटा सेट निकाल सकते हो, नहीं तो और कोई वेबसाइट है यू कैन रेफर, data.world और all those things, so you can refer the suitable website. But understand the intention is I wanted you to go through each and every top column, whichever top records are there in each columns. Clear सबको अभी? Now you are comfortable, right? Okay, so one more thing what we can say is there is something called arrow. ये icon set है, अलग अलग icons, ये ऐसे कम ज्यादा, flag, sorry, symbols. By the way, it's वो बहुत आइकन वगैरह nobody uses, it doesn't look professional. Okay, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, देखिए, I will select the data, I will select the icon shapes, वो ट्रैफिक इंडिकेटर देगा यहाँ पे, हाईएस्ट है तो ग्रीन कलर, राइट, एवरेज है तो सम ऑरेंज, सम रेड, आर ऑल दिस थिंग्स आर, जो यहाँ पे फुल डिटेल में दिया है वही एज ए इंडिकेटर हाईलाइट करेगा। इफ नॉट, वो आप अलग अलग एरो भी यूज कर सकते हो, ये जो एरो है ना, फ्लैग, ओके, नॉट ओके, ये फॉर फ्लैग, फिर ये अलग अलग चॉकलेट के शेप, ये ऊपर नीचे, राइट। सो डिपेंड्स, आपको कहीं ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है, बट दिस इज हाउ इट लुक्स। प्रोफेशनली नोबडी यूजेस, बट आपको कुछ डैशबोर्ड बनाना है, कुछ फैंसी बनाना है, तो यू कैन यूज दिस। ओके, क्लियर? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर सबको? ओके, हाँ सर। again there is one more thing which, okay, first of all let me clear all this. By the way, manage rules में जाएंगे ना, I can edit the rules, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग रूल्स में एडिट कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके I can again edit the rules. एडिट में और सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे, cell that contain ranked values, bottom, top, above average, below average, जो हमने ऑप्शन वहां पे देखे यहाँ पे ऑलरेडी सेम है ऑप्शन, थोड़े लाइन मतलब व्यू में अलग दिखा है बट सेम है वो इंफॉर्मेशन। ओके, you can refer this as well if you want to edit some rules or change something, you can follow this individual rules आप edit, सॉरी, इंडिविजुअल रूल्स आप एडिट कर सकते हैं, है ना। ओके, conditional, let me clear this and okay, so we'll follow the same example but let us see। समझिए, मुझे सेल्स का डेटा है एंड आई वांट टू फाइंड आउट टॉप 2, आई डोंट वांट मोर,
मे बी टॉप 2 से हम काम कर लेंगे। चलो टॉप 2, टॉप 10 लिखा है, बट यहाँ पे मैं जाके 10 की जगह आई कैन चेंज द नंबर। टॉप चलो 4 लेते हैं, एंड देन आई विल हाईलाइट देम विद द ग्रीन लाइट। ओके ओके, ये 4 रिकॉर्ड है, राइट? दीज आर द टॉप 4। बट अभी मैं एक स्क्रीन में ये चारों देख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा डेटा छोटा है, राइट? सो व्हाट इफ मेरा डेटा ऐसे बहुत रहता है, तो टॉप 4 कहीं भी हो सकते हैं ना, बीच में हो सकते हैं, बॉटम में हो सकते हैं, डाउन में हो सकते हैं, तो फिर आप कैसे फाइंड आउट? यहाँ पे हाईलाइट हुआ, तो आप ऐसा स्क्रॉल करके देखोगे क्या? सिर्फ स्क्रॉल करते बैठो, करते करते बैठो, कहाँ पे ग्रीन है वो देखो, हाँ यहाँ पे रिकॉर्ड मिला ग्रीन, ऐसे। और डू यू हैव एनी बेटर ऑप्शन? प्रॉब्लम समझ में आया? ऑनलाइन प्रॉब्लम समझ में आया क्या है? हाँ, जस्ट वो 4 ही वैल्यू दिखाना चाहिए, बाकी सब हाइड होना चाहिए। हाँ, दैट इज रिक्वायरमेंट। मतलब ऐसा हो कि कितने भी वैल्यूज हो उसमें, आई डोंट केयर, बट मुझे सिर्फ वो 4 वैल्यूज दिखने चाहिए एट द टॉप। ओके, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। तो ऑन कैसे अचीव करना है उस रिक्वायरमेंट को? Any idea, any suggestion, anything? 10,000 रिकॉर्ड है, उसमें से आप टॉप 5 निकाल रहे हो, राइट? Okay, let me tell you the shortcut. There is something called filter. मतलब in Excel there we have an option called filter. Okay, so what it does is, to enable the filter, first of all you need to data कुठे आहे ते select करा. Okay, suppose I want to apply filter for sales, right? So what I can do, I have to go into the data tab and select a filter option here. दिख रहा है? This is one of way. और what you can do is, home में जाके directly sort and filter option दिख रहा है यहाँ पे, you can select this as well. यहाँ पे फिल्टर है, सेम ऑप्शन है, वहां पे जो दिखा है यहाँ पे सेम ऑप्शन है। सो अप्लाई। ओके, ये अलग अलग एक ही जगह में अप्लाई किया, तो बटन भी आ रहे हैं, देखिए फिल्टर जैसे बटन आ रहे हैं आपको, राइट? एंड इफ यू क्लिक दैट बटन, आपको अलग अलग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आपको ये फिल्टर करने के लिए मिलता है यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड, इंडिविजुअल रिकॉर्ड नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं आया जो भी है 222 वाला, तो आई कैन रिमूव हिम। अनटिक कीजिए, हो गया, 222 वाला रिमूव हो जाएगा। ऐसे इंडिविजुअली आप फिल्टर लगा सकते हो। ओके, और एल्स व्हाट यू कैन डू इज फिल्टर बाय कलर भी ऑप्शन है, देखिए तो कौन सा कलर चाहिए था आपको? ग्रीन, तो कर दीजिए। ओके, तो फिल्टर हो गया डेटा। तो वट एवर डेटा यू हैव, you can filter using filter by color option. सर आणखी एकदा सांगा. Okay, so control Z. So the problem clear आहे ना तुम्हाला? What is our problem? हाँ सर. Okay, problem is, in 10,000, 20,000, 50,000 records, I need to find out a top 5. So that is not possible. So what we do is, first of all we enable the filter. कैसे enable करते हैं? कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और keep the cursor on the column. Go to home tab. Sort and filter option is available here. Okay, find, replace, go to and then go to spatial, and all option are there, but okay, click go to spatial are the different condition. Sorry, यहाँ पे हाँ, sort and select में you need to select a filter option. The filter, okay, आता जाईल. By the way, you can hide also like this, बट हमें चाहिए था ना, तो इसीलिए हमें ये फिल्टर ऑन करना पड़ेगा। क्लिक कीजिए इस पे, सारे ये फिल्टर ऑप्शन आ रहा है, आपको दिख रहा है ऊपर, ये देखिए
दिख रहा है ना, सब कॉलम के नाम सामने एक एक ड्रॉप डाउन आया है, एरो, एंड दिस इज नथिंग बट अ फिल्टर। यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो, क्लिक कीजिए, देन यू कैन इंडिविजुअल, आपको कुछ निकालना है नंबर तो आप इंडिविजुअली नंबर निकाल सकते हो, नहीं तो कुछ फिल्टर स्पेशल चाहिए तो कलर है, स्पेशल चाहिए तो नंबर है, राइट। अलग अलग रिक्वायरमेंट के ऊपर आपका ये अवेलेबल है। सो व्हाट आई नीड इज फिल्टर बाय कलर, राइट। कलर में जाके फिल्टर करने से ये क्लिक कर देता हूँ, सो आई विल गेट द फिल्टर। कलर के सारे जितने भी अभी यू हैव 10,000 20,000, ओनली हाईलाइटेड रिकॉर्ड्स विल बी एट द टॉप, बाकी सब डेटा हाइड हो जाएगा। ओके, क्लियर, सबको समझ में आया, राइट। सो सेम व्हाट एवर वी अंडरस्टूड, हमने उसी को यूज किया है टू इम्प्लीमेंट अ क्विक इनसाइट। So what we can do is, let me do this. There is something called age wise analysis, or okay, I already तुम्हाला secret सांगितलं मी, but let me, चलो, okay, now it is, so हमने जो अभी सीखा we'll apply it in the different data set. चलो, so now I have a HR related data set. आधी काय होतं, ट्रान्झॅक्शन डेटा सेट होतं, राईट. आता आपल्याकडे आहे HR चा डेटा आहे, एक कंपनी आहे, त्या कंपनीतले सगळे HR चे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे आहे, म्हणजे किती एम्प्लॉईज आहेत, किती सॅलरी, किती एक्सपिरियन्स, डेट ऑफ जॉईनिंग काय, ऑल दोज थिंग्स, राईट. सो फर्स्ट नेम, लेट्स डू द डेटा अंडरस्टँडिंग. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टेक्स्ट आहे, राईट. देन इनिशियल्स, हे पण टेक्स्ट आहे. डिपार्टमेंट, जे काय असेल, ग्रेड, सॅलरी, ग्रेड वगैरे ठरत असते, ग्रेड वरून तुमची सॅलरी ठरत असते, राईट. सो दॅट इज ग्रेड. टोटल एक्सपिरियन्स, एक्सपिरियन्स ऍज अ मॅनेजर, कोणी एम्प्लॉई जर मॅनेजर असेल तर त्याची एक्सपिरियन्स वेगळा लिहिलाय. जेंडर, मेल आहे का फिमेल, सीटीसी, त्याचं सॅलरी जे काय असतील ते, अँड डेट ऑफ जॉईनिंग, कधी जॉईन केली त्याने काय, राईट, अँड डेट ऑफ बर्थ. मोस्टली तुमचे हे HR कंपनीमध्ये एवढंच विचार, म्हणजे डेटा असतो ऍज अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, राईट. तर याच्यावरती तुम्हाला इन्साइट्स काढायचे आहेत. डेटा फॉर्मॅटिंग, डेटा अंडरस्टँडिंग हे तुम्ही करून घ्या, नॉट अन इश्यू. म्हणजे यू नीड टू सिलेक्ट द डेटा, राईट क्लिक, फॉर्मॅट, राईट. कॅन, ओके, चलो, विल डू विथ फॉर इनिशियल्स अँड डिपार्टमेंट. पहिला तर डेटा सिलेक्ट करतो मी, शिफ्ट कंट्रोल, एक एक इंडिविजुअली यू कैन सिलेक्ट. ओके, इतना ये डेटा सिलेक्ट हो गया. राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, क्या आना चाहिए इसमें, टेक्स्ट, राइट. यहाँ पे दिख रहा है क्या टेक्स्ट, हाँ, यस, इट इज देयर, राइट. सो सिलेक्ट द टेक्स्ट, प्रेस ओके, आपको ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया. डेटा फॉर्मेटिंग स्टेप याद है ना. तो सिमिलरली आप सब लोग कर सकते हैं अदर कॉलम्स, डेटा फॉर्मेटिंग. Now, important is I need to find out top 2 employees who are getting highest salary. So कैसे करना है, और top 5. So can anyone tell me कैसे करना है? Conditional formatting. Okay. Directly Then conditional formatting. Okay. no, High. cell, select the cell. Okay. Which cell I should select? CTC, no? Okay. CTC cell selected. Okay. Then No, whole cell. J column. that is the whole cell only. इसको सेल ही बोलते हैं ना, Column. ये सेल है ना, column. इसको क्या बोलेंगे. हाँ, सो बोलिए ना, सिलेक्ट CTC कॉलम, राइट. शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, CTC कॉलम सिलेक्ट होता है. ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप, Conditional formatting. ओके. Top 5. टॉप, हाँ, Top 5, like first one. यस. अभी मुझे क्या करना है, 5. और इनको रेड चाहिए, ग्रीन, रेड.
जो भी आपको वॉट एवर यू वांट, इट्स ओके ओके। आपके ऊपर एक है, नीचे एक, दो, तीन, चार, ऐसे ढूंढना जाना पड़ रहा है, राइट? सर सो नाउ आई फिल्टर नीड अ कंप्लीट रिकॉर्डिंग द वन सेम। सो क्या करना है? फिल्टर Yes, लगाना है। ओके। कहाँ पे? होम टैब में जाइए, देन गो टू मैं सॉर्ट एंड फिल्टर एंड देन क्लिक ऑन फिल्टर। हो जाता है। थोड़ा इंटेलिजेंट है एक्सेल, पुराने वर्जन में नहीं आता, नए वर्जन में आ जाता है। पता है। ओके, थोड़ा वर्जन स्पेसिफिक बहुत ज्यादा चेंजेस है। ओके, देन नेक्स्ट इज सीटीसी। कॉलम क्लिक कीजिए, यहाँ राइट, पे फिल्टर लगाना है, फिल्टर ऑन। बाद यहाँ फिल्टर पे बाय डायरेक्टली, हाँ, फिल्टर बाय कलर, ओके, क्लिक, फर्स्ट डायरेक्टली आपको मिल गए। आप यू कैन फाइंड आउट इनसाइट्स। कैसे? देखिए, इफ यू आर ऑब्जर्विंग, सारे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट से हैं। So all the employees which are top 5 are operations only, as well as all are from grade, एकाच grade मधले आहेत. And then most of them are male, म्हणजे 3 मेल है 2 फीमेल है. ओके, नॉट बैड, यहाँ पे दिख रहा है. ओके, देयर इज सम मिसमैच, बट ठीक है, यू फॉलो द जेंडर कॉलम. जेंडर के अनुसार मेल का डोमिनेंस जास्त है, फीमेल का कम है, राइट? So this is how you can like do the analysis. कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा है, कहाँ पे ज्यादा है, क्या ज्यादा है, all you can refer. Clear? Filter and sort clear. By the way, filter and sort, एक filter का देखा, sort is nothing but this. जो ऊपर दिख रहा है क्या, ये largest to smallest, smallest to largest, ये sort हो जाता है. Let me, हाँ, ascending descending you can set. ये देखिए यहाँ पे, if I go here and sort largest to smallest, large 5 which is top 5 and complete data selected. Clear, right? Sort and filter. So that is sort, this is a filter based application. कौन से options है? And there is one more option I'm interested. आपने यहाँ पे quick insights को find out निकाला, okay. ओके, आपने एक्शंस भी दिया कि बहुत सारे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में है, आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अलग अलग दूसरे डिपार्टमेंट में भी हाई पेइंग जॉब होने चाहिए, राइट? सो व्हाट एवर यू फील, आपने एक्शंस दे दिया. सो नाउ नेक्स्ट आई वांट वन मोर थिंग, एज इन और कुछ कर सकते हैं कि ऐसे एज ए इनसाइट्स पर्सपेक्टिव? यस, ऑनलाइन क्या और चीज के कुछ लिए इनसाइट्स? क्या चीज के लिए? इनसाइट्स फाइंड आउट करना है, इनसाइट्स. एवरेज सैलरी, Okay, got it. Average salary, mean, max, average, count, department, I know. मतलब डिपार्टमेंट देख के मैं बता सकता हूँ, जेंडर देख के बता सकता हूँ, मेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है, कम है, ऑल दोस थिंग्स. बट उसके बाद और कुछ याद आ रहा है, कुछ कर सकता हूँ मैं? थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कीजिए. ओके, कैन आई कैलकुलेट द एज ऑफ द एम्प्लॉय? एज वाइज में एनालिसिस कर सकता हूँ क्या? मतलब मेरे कंपनी में बूढ़े लोग हैं या यंग लोग हैं, फिर यंग लोगों का सैलरी कितना, बूढ़े लोगों का सैलरी कितना? कैन आई डू दैट? यस कैसे सर. बताइए आप? हाउ कैन आई डू दिस? फिल्टर लगा के जितना आपको ये ओके, ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो डेट ऑफ बर्थ, राइट? डेट ऑफ बर्थ है, फिर मैंने कुछ भी करके आज का डेट यहाँ पे लिख दिया और ये दोनों का डिफरेंस ले लिया तो मुझे एज आ जाएगा. करंट एज कैसे आता है, राइट? ऐसे ही आता है ना. सो व्हाट आई कैन डू इज, देयर इज समथिंग कॉल्ड टुडे, TODAY नाम का एक फंक्शन है. इंटर करोगे तो आज का दिन आएगा,
टुडे, ओके। एंड एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका एज कैसे कैलकुलेट होता है, मतलब किसी ने पूछा तो व्हाट यू डू इज टुडे माइनस डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू, ये आ गया राइट, 18477 वगैरह ऐसा कुछ आ गया। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द एज राइट, बट ये क्या है 18477, मंथ, यस डेज नंबर ऑफ और डेज है, नंबर ऑफ डेज है ना, डेज आपने क्या माइनस किया है, तो इसको पहले तो ईयर में कैलकुलेट कीजिए, ईयर कैसे 365 राइट, ऐसा ही रहता है ना, ऊपर देखिए फॉर्मूला बार में फॉर्मूला ऐसा ही आएगा ना, ये डेज है, इस डेज को ईयर में कैलकुलेट करने के लिए आई विल डिवाइड इट बाय 365, प्रेस एंटर, आ गया 50। बाय द एग्जैक्ट एक्यूरेसी कम करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज, सॉरी ये डेसिमल एडजस्ट कर सकता हूँ, ये देखिए यहाँ से है ना, यहाँ से तो ये 51 रनिंग है इसका, 50 प्लस समथिंग विच इज 51 यू कैन कंसिडर। तो ये हो गया एज, तो यहाँ पे हम एज निकाल सकते हैं। तो सेम वे व्हाट आई कैन डू इज, पहले तो ये टुडे को डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे टुडे भर गए, फिर इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगाए तो इसको डबल क्लिक कीजिए, आ गया राइट एज वाइज। और आपको एवरेज निकालिए, कितना एवरेज आ रहा है आपके कंपनी में, बुड्ढे है यंग लोग है आपको ही पता चलेगा, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लगता है, सारे ऑपरेशंस में है और सब लोग 40 एंड 50 प्लस है ना, सब लोग 50 प्लस, 53 है 49, तो समथिंग मैकेनिकल कंपनी जहाँ पे वर्क फोर्स इज रिलेटिवली ओल्ड, आईटी कंपनी में यंग रहते हैं बट मैकेनिकल एंड अदर इंडस्ट्रीज ओल्ड पीपल आर देयर। सो ये आप एज वाइज एनालिसिस कर सकते हो, एज पे देखिए कितना सिटी से है, किसका कौन सा है, कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा है क्या नहीं है, ओके क्लियर सबको, क्लियर काय करतोय आपण, व्हाट वी आर डूइंग। यस सर। So don't only stick to available data. If you can create something else out of available data, well and good. जर तुम्ही असं काही नवीन क्रिएट करू शकला आणि त्याच्यामधून काहीतरी इन्साइट्स काढलं तर दॅट इज मोर युजफुल, ओके अंडरस्टूड, ऑनलाइन ऑफलाइन, सो डोंट लिमिट युअरसेल्फ टू द एक्झिस्टिंग डेटा, तुम्हाला माहित आहे तुम्ही करू शकता, देर इज समथिंग एल्स, यू कॅन क्रिएट द डेटा, फाइंड इनसाइट्स ऑन दॅट। ऑनलाइन आहेत का, डिस्कनेक्ट झाले, आहेत सर। येस ओके गुड, क्लियर सगळ्यांना, हाँ काय सर। करायचं, हाउ टू फाइंड आउट इनसाइट्स स्टेजेस, सो कॅन यू ऍटलिस्ट कालचं होमवर्क करा राइट, ऍज वेल एज आज जे शिकलो आपण क्विक इनसाइट्सचे मेथड्स ते करा, ओके क्विक इनसाइट्सचे मेथड्स एंड ऑल, कंडिशनल फॉर्मॅटिंग वापरा, फिल्टर वापरा, सॉर्ट वापरा, देन फाइंड आउट सम इनसाइट्स। बाय द वे इनसाइट का एक्टिविटी हर रोज करना ही है आपको, इनसाइट और एक्शंस, क्योंकि यही आपका काम है एज अ डेटा एनालिस्ट। सो आई ऑलरेडी शेयर्ड प्रोजेक्ट डिटेल्स, मतलब आपको जो प्रोजेक्ट करना है उसके फाइल्स ऑलरेडी आपको गूगल ड्राइव में दिया गया है। सो वो फाइल आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, प्रोजेक्ट का जो डेटा सेट है उसके ऊपर आप कर सकते हो। इफ यू डोंट फाइंड एनी डेटा सेट you can refer the project data set and start working on that, okay उस पे शुरू कर दीजिए, डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, देन यू विल रियलाइज व्हाट इज द डिफिकल्टी देयर। क्लियर सबको क्या हो रहा है क्या नहीं है, व्हाट वी आर लर्निंग, इज एवरीबॉडी ऑनलाइन, सॉरी इज एवरीबॉडी ऑन द सेम पेज, Yes, sir. सो आप होमवर्क करोगे फिर Yes. और ऐसा कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं सीख रहे हैं, इवन नॉट ऐसा भी बहुत टेक्निकल है ये भी नहीं सीख रहे ना, वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग कि जो एक्सेल में दिया है हाउ वी कैन यूज इट प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, वी आर नॉट लर्निंग एनीथिंग कंसेप्चुअली, मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट सीख रहे हो, कुछ लॉजिक लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना।
So good then. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you all of you for your time. If you have any doubt, you can connect. Okay, we can connect over WhatsApp. Okay, okay, sir. Okay. Thank you, sir.